لیپ ٹاپ تکیے پہ رکھا تھا اور وہ اس کے سامنے کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال پیچھے کمر پہ پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی مغلئی آنکھیں جن میں چاندنی کی سی چمک تھی، اور چہرہ تو ملائی کا بنا لگتا تھا، سفید، ملائم اور چمکدار۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو یکدم اس کی متحرک انگلی ٹھہر گئی۔ اسکرین پہ جمی آنکھوں میں ذرا سا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کے دائیں طرف پھسلتی لٹیں پیچھے کی۔ چند سیکنڈ بعد صفحہ لوڈ ہو گیا تھا۔ وہ بے چینی سے چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو سلکی بالوں کی چند لٹیں پھر سے شانے پہ پھسل کر آگے کو گری۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دلانے میں کہ جو وہ پڑھ رہی تھی بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سیل فون سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ملانے لگی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا، دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو زارا، شاید رابطہ مل ہی گیا تھا۔ تبھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی، پھر دھیرے سے ہنس دی۔ ساری باتیں چھوڑو زارا، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ اب وہ عادتاً سیاہ بالوں کی ایک موٹی لٹ انگلی پہ لپیٹتی کہہ رہی تھی، اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں، تابر بھائی کی شادی کے متعلق نہیں ہے۔ دوسری جانب زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی، بلکہ یوں کرو تم گیس کرو کہ میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور تکیہ نکال کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ سیدھا لگایا، پھر اس سے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے۔ ساتھ ساتھ وہ نفی میں سر ہلاتی زارا کے کہے اندازوں کی تردید بھی کرتی جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ارے میری شادی وغیرہ نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے۔ اب کان کھول کر سنو، تمہیں وہ ارس مینڈس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر آف ہونے کے باوجود اس کی چیخ سارے کمرے میں سنائی دی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میل ملی ہے۔ اس نے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے پرے پڑے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب موڑا اور سر آگے کر کے غور سے دوبارہ دیکھا۔ ہاں، 15 منٹ پہلے ٹھیک 9:30 بجے سلیکشن کی میل آئی ہے۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے سے بٹن دبا کر لیپ ٹاپ آف کرنے لگی۔ نہیں، اسپین کی ڈیوسٹر نے نہیں، بلکہ ترکی کی سبانچی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین اندھیر ہوئی تو اس نے اسے ہاتھ سے دبا کر بند کیا، پھر تار نکال کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ہاں، میں نے سبانچی کو نیٹ پہ دیکھا ہے، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر وہ لمحے بھر کر خاموش ہو گئی۔ دوسری جانب سے غالباً استفسار کیا گیا تو وہ گویا ہوئی، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل سبانجی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے،
उधर सर ढकना मना है। घर वालों को बता कर मुतनफ़िर करने के बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों में से कोई स्कार्फ नहीं लेता। उसी पल खिड़की के उस पार कुछ खड़का था। वो चौंक कर देखने लगी। कदआदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली थी। शायद उसका वहम था। वो सर झटक कर फ़ोन की जानिब मतवज्जा हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर से बाहर स्कार्फ लेती है। उसके अब्बू ताया फुरकान ज़रा सख्त है ना। वो फिर से बैकग्राउंड से टेक लगाए नीम दराज मगन से बताने लगी, परमिशन तो कोई मसला ही नहीं। अब्बा स्पेन जाने की इजाज़त ना देते, मगर तुर्की में सबीन फुप्पो रहती है ना, सो वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे एयरपीस से उभरती अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़रा खामोश हुई तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी परसों है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कज़न बहुत एक्साइटेड हैं। ख़ानदान की पहली शादी है ना। ओके, तुम अब जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात कहकर उसने मोबाइल कान से हटाया और तकिए पे उछाल दिया। फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और नंगे पांव चलती लाउंज से किचन की तरफ आई। सियाह लंबी कमीज और सियाह खुले ट्राउज़र में उसका कद मज़ीद दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला था। वो दरवाजे के करीब रुकी और हाथ से दीवार पर स्विच बोर्ड टटोला। बटन दबने की आवाज़ आई और सारी बत्तियां जल उठीं। उसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से रेशमी बाल कंधों से फिसलकर सामने को आ गिरे। हया ने नज़ाकत से उंगली से उनको पीछे हटाया और बोतल निकालकर सीधी हुई। फिर काउंटर पर रखे रैक से शीशे का गिलास उठाया और बोतल उसमें डेली। पानी की नदी सी गिलास में गिरने लगी। तब भी उसकी निगाह काउंटर पर रखी किसी सफ़ेद चीज़ पे पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल वहीं स्लैब पर रखकर उस तरफ आई। वो सफ़ेद अर्ध खुले गुलाबों का बुके था, जिसमें कहीं कहीं सब्ज़ पत्ते झलक रहे थे। साथ ही एक बंद सफ़ेद लिफाफा रखा था। हया ने गुलदस्ता उठाया और चेहरे के करीब लाकर आंखें मूंदे सूंघा। दिल फरेब ताजगी भरी महक उसके अंदर तक उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी अभी तोड़े गए हों। जाने कौन रख गया इधर। उसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। उस पे घर के पते के ऊपर नुमाया सा हया सुलेमान लिखा था। पीछे भेजने वाले का पता ना था, बस कॉरियर सर्विस के मोहर और स्टिकर लगे थे। मोहर पर एक रोज़ कबल की तारीख थी। उसको कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे थे। क्या मामला था ये भला? उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक किया। अंदर एक मोटा कागज़ था। उसने 2 उंगलियां लिफाफे में डालकर कागज़ पकड़ा और बाहर निकाला। सफ़ेद कागज़ बिल्कुल साफ था, न लकीर न कोई डिज़ाइन। बस उसके वस्त में अंग्रेज़ी में 3 लफ्ज़ लिखे थे, वेलकम टू सबांजी। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था? भला खत भेजने वाले को कैसे पता कि वो सबांजी जा रही है? खत पे तो एक रोज़ कबल की तारीख थी, जबकि कबूलियत की वो ईमेल उसे अभी 15 मिनट पहले मौसूल हुई थी। जो बात उसे ऑफिशियली बताई ही 15 मिनट कबल गई थी, वो उस शख्स को एक रोज़ पेशतर कैसे मालूम हुई? अगर ज़ारा को उसने खुद अभी ना बताया होता तो वो समझती कि ये उसकी हरकत है और ये खत सबांजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि उस पे एक कौमी सतह की कोरियर कंपनी की मोहर लगी थी। फिर किसने भेजा उसे ये? पानी से भरा ग्लास वहीं स्लैब पर छोड़कर बुके और लिफाफा उठाए वो उलझती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। सपहर की ठंडी सी छाया हर सू छाई थी। वो परस कंधे से लटकाए बारीक हील से चलती पोर्च में खड़ी अपनी कार की तरफ आई, जो थी तो उसके भाई रोहेल की, मगर उसके पढ़ाई की गर्ज से अमेरिका चले जाने के बाद हया की मलकियत थी।
उसने चाबी लॉक में घुमाई ही थी कि गेट के उस पार से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं आई। ज़ारा ने अर्ध खुले गेट को धकेल कर अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पे उदासी थी। वो दरमियानी शक्ल सूरत की स्टाइलिश सी लड़की और हया की हम उम्र थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, तुम फिक्र ना करो। हमने साथ ही अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन हो गया है तो तुम्हारा भी हो जाएगा। हया ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा आधा खोले खड़े खड़े बताने लगी। मगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर आज जो लिस्ट लगी है उसमें भी मेरा नाम नहीं है, और मेरा सिर्फ तुम्हारा है हमारे डिपार्टमेंट से, और इन्वायरमेंटल साइंसेस की एक लड़की खतीजा राना का है। मेरा ख्याल है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, उसे वाक़तन अफसोस हुआ। रात फ़ोन कॉल के बाद उसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर दोबारा बशाशत लाते हुए पूछने लगी। हाँ, मार्केट जा रही थी इरम के साथ। दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन है और मेरे लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई है। शायद काम वाली उठा कर ले गई है। अब नए जूते लेने पड़ेंगे। तुम चलोगी? वो गाड़ी से कोहनी टिकाए तफसीलन बताने लगी। उस वक्त वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज का दामन टखनों से ज़रा ऊपर तक था। हमरंग दुपट्टा गर्दन के गिर्द लिपटा था। बाल कमर पर गिर रहे थे और आदतन आंखों में गहरा काजल डाला था। हाँ, चलो फिर जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट की तरफ बढ़ी। इरम को भी लेना है। हया ने अंदर बैठकर दरवाज़ा बंद किया और इग्निशन में चाबी घुमाई। वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को यूं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाने की इजाज़त दे देते हैं। इरम उन दोनों से जूनियर थी और उसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, तो ज़ारा की उससे ज़्यादा मुलाकात न थी। उनकी सख्ती सिर्फ स्कार्फ तक है। वैसे बहुत अच्छे हैं वो कार बाहर गेट पे ले आई। इरम का घर हया के हमसाए में था। दोनों घरों के दरमियानी दीवार में आने जाने का रास्ता भी मौजूद था, लेकिन उससे जब भी इरम को पिक करना होता वो उसके गेट पे हॉर्न दिया करती थी। अब भी जोर का हॉर्न दिया तो चंद ही लम्हे बाद इरम बाहर निकल आई। कासनी लंबी कमीज और ट्राउज़र में मलबूस हमरंग दुपट्टा फैलाकर सामने लिए, चेहरे के गिर्द मैचिंग कासनी स्कार्फ लपेटे वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे तक आई थी। हेलो हया, हेलो ज़ारा। बेतकल्लुफ़ी से चहकते हुए उसने अंदर बैठकर दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम उसे यूं ही खुश किया करते थे। कैसी हो इरम, तुमसे तो मुलाकात ही नहीं हो पाती। ज़ारा ने तिरछी होकर रुख पीछे को किया। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है ना, तभी। और हाँ, हया बता रही थी आप लोगों का तुर्की का सिलेक्शन आ गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर, इसमें कोई बेहतरी होगी। तुमने नहीं अप्लाई किया था? अब्बा इजाज़त देते तब ना। वो उदास हो गई। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादीबी नज़रों से उसे घूरा कि कहीं पहले से एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मज़ीद उदास न हो जाए। मगर ज़ारा गर्दन मोड़े पीछे देख रही थी और इरम हंसपे तवक्का उदास हो गई थी। अब्बा भी पता नहीं किस पे चले गए। इतनी गर्मी में स्कार्फ लेना आसान होता है क्या? और फिर कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्तीन नहीं बनाने दी मुझे। हया की भी तो आधी आस्तीन है, इतनी अच्छी लगती हैं, मगर अब्बा ज़रा भी सुलेमान चचा की तरह नहीं है। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। उसने कुफ्फत छुपाते हुए बात का रुख बदला। इरम का हर वक्त का शिकायती रवैया उसे बेहद बुरा लगता था। चूड़ियाँ लेनी है, मगर लहंगे के ब्लाउज के फुल स्लीव्स के साथ चूड़ियाँ अच्छी भी नहीं लगेंगी। वो मुंह बसोरे फिर से शुरू हो गई तो हया ने सर झटक कर सीडी प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गीत बुलंद आवाज से गूंजने लगा तो इरम को खामोश होना पड़ा। जिन्हा सुपरमार्केट पहुंचकर इरम तो चूड़ियाँ ढूंढने निकल गई, जबकि वो दोनों मेट्रो शूज़ पे आ गई।
یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے یہ دکھائیں۔ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم۔ سیلز مین نے پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ زمین پہ پنچوں کے بل بیٹھا تھا جبکہ حیا اور زارا سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی۔ پہنا دوں میم؟ بہت مؤدب اور شائستہ انداز میں پوچھتے ہوئے سیلز مین نے ہاتھوں میں پکڑا جوتا اس کے پاؤں کے قریب کیا جو خوبصورت ہیلز میں مقید تھے۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شور، یہ لیجئے۔ سیلز مین نے مسکرا کر جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسے تھامتے ہوئے حیا کی انگلیاں لازماً اس کے ہاتھ سے مس ہوتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے ڈوکھے لہجے پہ سیلز مین نے زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا تھا اور لڑکے نے سکے کو یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلز مین نے جوتے کو، تاکہ اسے تھامتے وقت لازماً اس کا ہاتھ ٹکرائے۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچے۔ سکہ لڑکے کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میم، آپ کا سکہ۔ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں سکہ اس کی جانب بڑھایا کہ اب تو لازمی پکڑے گی اور یہ سامنے رکھے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپ پر تھامے پلٹ گئی۔ زارا نے بے اختیار کہکا لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل تو کر رہا تھا اسی شکل پہ شاپ کے سارے جوتے دے ماروں۔ معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی دیکھی نہ ہو۔ وہ تنفس سے ناک سکوڑتی غصے میں بولتی زارا کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب سے آواز آئی، تو اتنا بند سور کر باہر نہ نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر ٹھہر گئی۔ وہ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پہ ڈال کر آہستہ آہستہ اوپر زینے چڑھ رہی تھی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہتی مگر زارا اس کو کوہنی سے تھامے وہاں سے لے آئی۔ تبھی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پہ پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا۔ اس نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ صرف ان کے ساتھ آؤٹنگ پہ آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئیں کہ کچھ ہلکا پھلکا سا کھا لیں۔ رات کی دعوت تو تایا فرقان کی طرف تھی جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان والوں کے لیے دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل سلش منگوا لینا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے لوں۔ ارم جھٹ باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تپیڑا تیزی سے اندر آیا تھا مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا مزہ تھا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے ساری جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ مغرب گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکس لگتی ہے نہیں؟ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف گھومی۔ اور تم اس کے انہی کمپلیکسز کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ الٹا اسی پہ خفا ہوئی۔ تایا فرقان صرف اسکاف کی سختی کرتی ہیں، وہ بس اسی بات پہ خود ترسی کا شکار ہے اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا کہ خوامخواہ کی خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف کھلے شیشے کے باہر آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، پچھلے سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں پہنچ کر سارا پروگرام ہی کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر لکھوا کر وہ شیشہ اوپر چڑھاتے ہوئے یاد کر کے کہنے لگی، میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی ترکی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں آج جڑنے کی خوشی درائی تھی۔ زارا اور وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز کے 5ویں سال میں تھیں۔ ان کا 7واں سیمسٹر درمیان میں تھا جب یورپی یونین کے اسپانسرڈ اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیز کے مابین طلباء کا تبادلہ ہونا تھا۔ یوں چند ماہ کے لیے یہاں سے کچھ طلباء یورپ کی یونیورسٹیز جائیں گے
और एक सेमेस्टर पढ़कर वापस आ जाएंगे। जब यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में दरख्वास्त देने की बारी आई तो उसे तुर्की के सबांची यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबसे आसान लगा। फिर एक हिस्पानवी यूनिवर्सिटी में भी साथ ही अप्लाई कर दिया और अब बिला आखिर सबांची ने उससे मुंतखब कर लिया था। इधर 7वां सेमेस्टर पूरा करके उसे फरवरी में 5 माह के लिए तुर्की जाना था, जहां उसके अपने मज़ामीन शरिया एंड लॉ तो ना थे कि तुर्की का कानून पाकिस्तान के कानून से मुख्तलिफ था, तो 5 माह के लिए वो अपनी मर्जी से कोई भी मजमून पढ़ सकती थी। फिर वापस पाकिस्तान आकर उसे LLB का 8वां सेमेस्टर शुरू करना था। कितना मज़ा आए हया, अगर कोई रोमांटिक सा हैंडसम सा हम सफ़र तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा सफ़र कितना खूबसूरत हो जाएगा। हम सफ़र कोई नहीं मिलने वाला, क्योंकि पाकिस्तान से सबांची सिर्फ हम 2 लड़कियां ही जा रही हैं और फिर हम ठहरे ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले। वो खदीजा राना जो तुम्हारे साथ जा रही है, उससे कोई बात हुई? वेटर ने शीशा बजाया तो हया चौंकी, फिर शीशा नीचे करने लगी। नहीं, खदीजा राना को तो मैं नहीं जानती, मालूम नहीं कौन है। उसने स्लश के ग्लास पकड़े, ज़ारा को उसे थमाया और इरम का डैशबोर्ड पे रखा, फिर अपना ग्लास लबों से लगाया। ठंडा सा स्लश अंदर तक उतरता गया। बेध्यानी में वो शीशा बंद करना कब भूली उसे इल्म ना हो सका। दफातन ज़ारा का मोबाइल बजा। ज़ारा ने सिप लेते हुए मोबाइल कान से लगाया। हेलो अम्मा जी, क्या आवाज़ ख़राब है? 1 मिनट। ज़ारा के फ़ोन पे गालबन सिग्नल ठीक नहीं आ रहे थे। वो स्लश का ग्लास हाथ में पकड़े दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। हया अपने ग्लास से छोटे छोटे सिप लेते ज़ारा को विंडो स्क्रीन के पार से देख रही थी। अब वो दूर एक दरख्त के साथ खड़ी फ़ोन पे बात कर रही थी। हेलो माय लेडी, कोई एकदम से उसके बहुत करीब आकर बोला। वो डर कर उछली, ज़रा सा जोश कपड़ों पे झलक गया। खुली खिड़की पे एक औरत मुस्कुराते हुए झुकी हुई थी। मेकअप से अटा चेहरा, चमकता हुआ आई शेडो, भड़कती हुई सुर्खी, बालों का जोड़ा, चमचम कपड़े। वो औरत नहीं थी, मगर वो मर्द भी नहीं था। कैसे हो जी? वो उसकी खिड़की पे पूरा झुका खड़ा था। ग्लास उसके हाथ में कांपा। बेइख्तियार उसने शीशा ऊपर चढ़ाना चाहा, मगर उसके हाथ दरमियान में थे। डरो नहीं बाजी जी, मैं आपकी दोस्त हूँ, डोली कहते हैं मुझे। हटो हटो जाओ। वो घबरा गई। ख्वाजा सरा के वजूद से सस्ते परफ्यूम की तेज खुशबू उठ रही थी। उसे कराहत सी आई। ज़रा बात तो सुनो। उसने अपना चेहरा मज़ीद झुकाया और उससे पहले कि वो आके बढ़ता, हया ने स्लश का भरा हुआ ग्लास उसके मुंह पे उलट दिया। ठंडी ठार बर्फ चेहरे पे पड़ी तो वह झटके से पीछे हटा। उसने फुर्ती से शीशा ऊपर चढ़ा लिया। सुनो जी, वो मुस्कुरा कर चेहरा साफ करता शीशा बजाने लगा। बंद शीशे के बाइस उसकी आवाज़ हल्की हो गई थी और अब वो कोई गीत गुनगुनाने लगा था। कपकपाते हाथों से उसने इग्निशन में चाबी घुमाई और गाड़ी वहाँ से निकाल लाई। बेकरी के दाखिली दरवाजे के सामने कार लाकर उसने पलटकर देखा। वहाँ दरख्तों के साथ वो डोली नामे ख्वाजा सरा अभी तक खड़ा था। वो उसके पीछे नहीं आया था और अब गा भी नहीं रहा था, बस खामोशी गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसे बेइख्तियार झुंझुरी सी आई। कहाँ रह गई ये दोनों? उसने झुंझलाकर हॉर्न पे हाथ रख दिया, फिर गर्दन मोड़कर दोबारा देखा। वो अभी तक उसे ही देख रहा था। इरम और ज़ारा को ड्रॉप करके वो सीधी अपने कमरे में आई थी। डिनर का वक्त होने वाला था। उसने ये कपड़े डिनर की मुनासबत से ही पहने थे, मगर जूस छलकने से ज़रा सा दाग पड़ गया था। उसने जल्दी से दुपट्टे का वो हिस्सा धोकर उसे इस्त्री किया। उसे रह रह कर वो ख्वाजा सरा याद आ रहा था। उस बरादरी के लोग अक्सर आकर पैसे मांगते थे, मगर ऐसी हरकत तो कभी किसी ने नहीं की थी। उस ख्वाजा सरा की अजीब निगाहें और अंदाज उसे फिर से झुरझुरी आई। फिर जब अपनी तैयारी से मुतमईन होकर वो बाहर आई और लॉबी का दरवाज़ा खोला तो पाँव किसी चीज़ से टकराया। वो चौंक गई। दरवाजे के साथ फर्श पर सफ़ेद
अर्ध खुले गुलाबों का बुके पड़ा था। वो झुकी और बुके उठाया, साथ में एक बंद लिफाफा भी था। वो दोनों चीज़ें उठाकर सीधी हुई और लिफाफा खोला जिस पे हया सुलेमान लिखा था। अंदर वही सफ़ेद बेसतर चौकोर कागज़ था। उसके वस्त में उर्दू में लिखा था, उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का डिनर अच्छा गुजरेगा। उसने लिफाफा पलट कर देखा, कहीं भी कुछ और नहीं लिखा था, बस लिफाफे पे गुज़िश्ता रोज़ की मोहर लगी थी। ये कौन था और क्यों उसे फूल भेज रहा था? वो बुके और खत कमरे में रखकर सारे मामले पे उलझती बाहर आई। ताया फुरकान के घर खूब चहल पहल लगी थी। लाउंज में सब कज़न्स बैठे थे। एक तरफ खवातीन का ग्रोह खुशखबरियों में मशगूल था। मर्द हजरात यकीनन ड्राइंग रूम में थे। उसके ख़ानदान में कज़न्स की बेतकल्लुफ़ी को बुरी नज़र से नहीं देखा जाता था। ताया फुरकान चारों बहन भाइयों में सबसे सख्त थे और उनकी सख्ती इरम के स्कार्फ लेने और घर से बाहर लड़कों से बात करने पे थी। इरम और बाकी कज़न्स भी अमूमन अपने कज़न्स के सिवा बाहर के किसी लड़के से बात नहीं करती थी। हया और इरम तो पढ़ती भी ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी में थी। हाँ, दूसरे चचा और खुद सुलेमान साहब मुस्तकबिल में अपने बच्चों की शादियाँ यकीनन मिक्स गैदरिंग में रखेंगे, ये सबको मालूम था। उनका ख़ानदान ज़्यादा बड़ा न था। वो लोग 3 भाई और एक बहन थे। ताया फुरकान सबसे बड़े थे। दावर, फ़ारूक और इरम उनके बच्चे थे। फ़ारूक मेडिकल कर चुका था और आजकल पॉलीक्लिनिक से हाउस जॉब कर रहा था। वो हया से 3 साल बड़ा था। समी फ़ारूक से साल भर छोटा था और एमपी के बाद जॉब कर रहा था। इरम हया से साल भर छोटी थी। आजकल सबसे बड़े दावर की शादी की तैयारी थी। ताया फुरकान के बाद सुलेमान साहब थे। हया उनकी इकलौती बेटी थी और रुहेल इकलौता बेटा। रुहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका होता था। अब उनके घर में सुलेमान साहब, फातिमा बेगम और हया, बस यही तीनों थे। फिर जाहिद चचा थे। उनकी बड़ी 2 जुड़वा बेटियां महविश और सहरिश थीं। फिर बेटा रज़ा इंजीनियर था। सबसे छोटी बेटी सना ओ लेवल कर रही थी। इस वक्त सवाए रुहेल के जो अमेरिका में था और दावर भाई के जो गायबन ड्राइंग रूम में थे, बाकी तमाम लड़के लड़कियां लाउंज में मौजूद थे। लड़कियां कारपेट पर दायरा बनाकर बैठी थी। इरम के हाथ में ढोलक थी। उसका दुपट्टा सर से ढलक कर कंधे पे आ गया था और वो महविश, सहरिश और सना के हमरा सुर मिला रही थी, जबकि रज़ा, फ़ारूक और समी ऊपर कुर्सियों पर बैठे मजाकन लड़कियों की तरफ फिक्रे उछाल रहे थे। हेलो एवरीवन। वो सीने पे हाथ बांधे चलती हुई उनके करीब आकर रुकी तो सबकी निगाहें उसकी जानिब उठी। सफ़ेद चेहरे के दोनों अतराफ में गिरते सीधे स्याह बाल और बड़ी बड़ी काजल से लबरेज आँखें। वो थी ही इतनी हसीन के हर उठी निगाह में सताइश उमड़ आई। हया, कैसी हो? आओ चलो इन लड़कों को हराते हैं। आओ बैठो ना। बहुत सी आवाज़ें उससे टकराईं, मगर उसने बेनियाज़ी भरी मुस्कुराहट से शाने उचकाए। पहले मैं साइमा ताई की किचन में हेल्प करवा दूँ। उसने इरम की अम्मी का नाम लिया, जिनको उसने आते हुए उठकर किचन की तरफ जाते देखा था। साइमा ताई ने यकीनन उसको आते नहीं देखा था, वरना उसे बुलवा लेती। इरम से ज़्यादा समझदार तो बकौल उनके हया थी। साइमा ताई के पीछे जाहिद चचा की बेगम आबिदा चच्ची भी चली गई थी। अब सोफे पे हया की अम्मी फातिमा बेगम तन्हा बैठी थी। अम्मा, मैं ज़रा साइमा ताई के साथ हेल्प करवा दूँ। उनको अपनी तरफ देखता पाकर उसने अपनी बात दोहराई तो उन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया। वो मुतमईन सी आगे बढ़ गई। राहदारी पार करके किचन के दरवाजे की सिमत बढ़ी ही थी कि साइमा ताई की तेज़ आवाज़ समाज से टकराई। जैसे मैं जानती ही नहीं हूँ कि ये सारे रंग ढंग किस लिए होते हैं। एक मेरे ही बेटे मिले हैं इसको पागल बनाने के लिए। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे दीवार से जा लगी। ये साइमा ताई किसकी बात कर रही थी? तभी मैं कहूँ भाभी कि रज़ा क्यों हर वक्त हया हया करता है। वो आबिदा चच्ची थी। अपने नाम पे वो चौंक सी गई। वो कह रही थी,
पिछली दफ़ा जब हम सुलेमान भाई के घर खाने पे आए थे तो कैसे नक सक से तैयार फिर रही थी। तब से रज़ा मेरे पीछे पड़ा है कि हया का रिश्ता मांगे। इस लड़की को लड़कों को मतवज्जा करने का फन आता है आपदा। कितनी मुश्किल से दावर के दिल से उसका ख्याल निकाला था मैंने और फुरकान ने। वो तो अड़ ही गया था कि शादी करेगा तो सिर्फ हया से, मगर जब फुरकान ने सख्ती की कि भला ऐसी बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने आखिरत बिगाड़नी है क्या, तब कहीं जाकर वो माना। मगर अब फरूक, क्या करूं इस लड़के का, ये अभी भी उस तरह कील कांटों से लेस होकर आ जाएगी और फरूक फिर उसके जाने के बाद जिद पकड़ लेगा। अब मेरी इरम भी तो है, मजाल है कि सर पे दुपट्टा लिए बगैर घर से निकले। साइमा ताई फखर से कह रही थी और वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ बामुश्किल दीवार का सहारा लिए खड़ी थी। उसे लगा अगर उसने मज़ीद कुछ सुना तो उसके असाब जवाब दे जाएंगे। बदिक्कत अपने वजूद को संभालते वो वापस पलट आई। किसी बात पे हंसते हुए फरूक की निगाह उस पे पड़ी जो राहदारी से चली आ रही थी तो उसकी हंसी थम गई। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कबूल सूरत सा फरूक, जिसकी रंगत टफ रूटीन के बाइस मजीद संभला गई थी, मगर मसला उसकी वाजबी शख्सियत या हया की बेपर्दगी का न था। असल बात तो वो सब जानते थे, फिर भला उसके बारे में रज़ा या फरूक ने सोचा भी कैसे। वो एक स्पार्ट निगाह फरूक पर डालकर चुपचाप फातिमा बेगम के साथ सोफे पे आ बैठी। तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने गौर से उसके चेहरे को देखकर पूछा। कुछ नहीं अम्मा, वो बेदिक्कत खुद को नॉर्मल कर पाई। फातिमा मुतमईन हो गई और वो साइमा ताई के बारे में सोचने लगी, जिनका हया मेरी जान कहते मुँह न थकता था और ताया फुरकान के लिए तो वही बड़ी बेटी थी। लेकिन अंदर से उन लोगों के ऐसे ख्यालात होंगे वो गुमान भी नहीं कर सकती थी। और वो फूल वो भी रज़ा या फरूक में से ही किसी ने भेजे होंगे। मगर कल रात जब पहली दफ़ा फूल आए थे तब तो फरूक नाइट ड्यूटी पे था और रज़ा तो इस्लामाबाद में ही। मगर उन दोनों में से किसी को उसके ज़बानची के सिलेक्शन के बारे में कैसे इल्म हुआ? शायद जब वो ज़ारा को फ़ोन पे बता रही थी तब खिड़की के बाहर कुछ खड़का था। वो जो कोई भी था यकीनन उसने खिड़की के बाहर से सारी बात सुन ली होगी और सुनकर ही वो खत लिखकर फूलों के साथ उधर रखा होगा। मगर उस पे तो कॉरियर की एक रोज़ कबल की मोहर थी। शायद उसने कोई जाली मोहर इस्तेमाल की हो। मगर इतने झमेलों में फरूक और रज़ा जैसे जॉब वाले मसरूफ़ बंदे क्यों पड़ेंगे भला? उसका दिल कहता था ये ना फरूक है ना रज़ा बल्कि कोई और है। खैर जहन्नुम में जाए वो जो भी है, उन दोनों का दिमाग तो अभी ठीक करती हूँ। वो तेज़ी से उठकर लड़के लड़कियों के ग्रुप के पास चली आई। इरम, सामने खड़े खड़े उसने मखसूस बेनियाजी से सीने पे हाथ बांधे इरम को पुकारा तो सब रुक कर उसे देखने लगे। क्या तुम लोगों ने सबीन फूफो को शादी का कार्ड भेजा था तुर्की? कनखियों से उसने फरूक और रज़ा के चेहरों को देखा था। वो दोनों चौंके थे और दोनों को ही उसकी बात पसंद नहीं आई थी। जैसे फूफो का कार्ड सुलेमान चचा को दिया था, उन्होंने भिजवा दिया होगा। और हाँ, फूफो को अब्बा ने फ़ोन कर दिया था। क्या वो आएंगी? आना तो चाहिए, आखिर करीबी रिश्ता है, तुमसे ना सही हमसे तो है। उसने करीबी रिश्ते पर जोर देकर एक जताती नज़र फरूक और रज़ा पे डाली। वो दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे। फिर खाने के वक्त साइमा ताई ने सबसे पहले उसे बुलाया। हया मेरी जान, ये इरम किसी काम की नहीं है, तुम समझदार हो। टेबल पे तुमने ख्याल रखना है कि जैसे कोई डिश आदि हो फ़ौरन ज़फ़र को इशारा करना, ठीक? श्योर ताई, मैं ख्याल करूँगी। वो बदिक्कत मुस्कुराती हुई सर्व करने लगी। चंद मिनट बाद सब डाइनिंग हॉल में खड़े अपनी अपनी प्लेटों में खाना निकाल रहे थे। डाइनिंग टेबल के तरफ से कुर्सियां हटाकर एक दीवार के साथ लगा दी गई थी ताकि सब अपनी मर्जी से खाना निकालकर इधर उधर टहलते हुए खाते रहें। ताया जान, आपने सलाद नहीं लिया?
वो रशीन सलाद से भरा शीशे का बड़ा प्याला उठाए ताया, फुरकान और सुलेमान साहब के पास आई, जो अपने ध्यान में महवे गुफ्तगू थे। उसके पुकारने पर चौंके। थैंक यू बेटा। ताया, फुरकान मुस्कुराकर चमचे से सलाद अपनी प्लेट में निकालने लगे। वो शलवार कुर्ते में मलबूस थे, कंधों में शाल थी और बारोब चेहरे पे मूछें। सुलेमान साहब उनके बरक्स क्लीन शेव डिनर सूट में मलबूस खासे स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे। दोनों की सोच भी अपने हुलियों की मानी थी। अब्बा, आप भी लेना। सुलेमान, तुमने सबीन को कार्ड पोस्ट कर दिया था? ताया को अचानक शायद उसी की शक्ल देखकर याद आया। सुलेमान साहब का चमचे में सलाद भरता हाथ जरा सुस्त हुआ और चेहरे पे करवाहट फैल गई। बहुत आहिस्ता आहिस्ता से उन्होंने सलाद से भरा चमचा अपनी प्लेट में पलटा कर दिया था। उनके लहजे में अजीब काट थी जो हया के लिए नई थी। अब्बा, सबीन फुप्पो शादी पे आएंगी? वो पूछे बिना रह न सकी। कल मेहंदी है, आना होता तो अब तक आ गई होती। 30 सालों में जो औरत सिर्फ चंद दफ़ा मिलने आई हो, वो अभी ना आए तो बेहतर है। हया तो क्या, फुरकान ताया भी दंग रह गए। सुलेमान, क्या हुआ है? थैंक यू बेटा। जवाब देने की बजाय सुलेमान साहब ने उससे मुखातिब किया तो वो अब तुम जाओ का इशारा समझकर सर झुकाए वहाँ से चली आई। बहुत आहिस्ता से सलाद का प्याला मेज़ पे रखा और अपनी आधी भरी प्लेट उठाई, मगर अब कुछ भी खाने को जी नहीं जा रहा था। ये अब्बा को क्या हो गया था? वो फूफो के बारे में ऐसी गुफ्तगू क्यों कर रहे थे? फिर वो रुक नहीं सकी। अपनी प्लेट के लिए उस सतून के पीछे आ खड़ी हुई जिसकी दूसरी जानिब ताया और अब्बा खड़े थे, बज़ाहिर अपनी प्लेट पे सर झुकाए। उसके कान उन्हीं की तरफ लगे थे। हया के लिए उमर लगारी ने अपने बेटे का प्रपोजल दिया है। सुलेमान साहब अपने दोस्त और अपनी कंपनी के शेयर होल्डर का नाम लेकर कह रहे थे और उसके हाथ में पकड़ी प्लेट लरस गई। दिल सहम उठा। ये क्या कह रहे हो? ताया, फुरकान शशतर रह गए थे। भाई, इसमें हैरत की क्या बात है? वलीद अच्छा लड़का है, कल मेहंदी पे आएगा तो आपको मिलवाऊंगा। सोच रहा हूँ हया से पूछ कर हाँ कर दूँ। मगर सुलेमान, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम हया की शादी यूँ कैसे कर सकते हो? बाप हूँ उसका, कर सकता हूँ। फातिमा भी राजी है और मुझे यकीन है कि हया को भी कोई इतराज़ नहीं होगा। और जहान का क्या होगा? कौन जहान? सुलेमान साहब यकसर अनजान बन गए। तुम्हारा भांजा सबीन का बेटा जहान, जिससे तुमने हया का निकाह किया था, तुम कैसे भूल सकते हो? जवाबन सुलेमान साहब ने नागवारी से सर झटका। वो 21 साल पुरानी बात है और हया अब 22 साल की हो चुकी है। बेवकूफ़ी की थी मैंने कि सबीन पर एतबार करके अपनी बच्ची का निकाह उसके बेटे से कर दिया था। क्या उन 21 बरसों में कभी सबीन ने मुड़कर पूछा कि उस निकाह का क्या बना या क्या बनेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 माह में एक फ़ोन कर लेती है और 3 मिनट बात करके रख देती है। आपको वाकई ही लगता है कि वो लोग इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं? मगर सबीन तो सिकंदर की वजह से, तुम जानते हो, वो उल्टे दिमाग का शख्स। मैं कैसे मान लूँ कि सिर्फ अपने मगरूर और बददिमाग शोहर की वजह से वो अपने बेटे का निकाह भूल सकती है? इतने बरस बीत गए, उसने फिर कभी रिश्ते या शादी की बात मुंह से नहीं निकाली। मैं उससे क्या उम्मीद रखूं? मगर जहान तो अच्छा लड़का है। तुम उससे मिले तो थे पिछले साल जब तुम इस्तांबुल गए थे। जी, जहान सिकंदर अच्छा लड़का, माय फुट। उन्होंने तलखी से सर झटका। उसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। वो तुर्की में पैदा हुआ है। उसने कभी पाकिस्तान की शक्ल नहीं देखी। ना उसे उर्दू आती है ना पंजाबी। कभी उन तमाम बरसों में उसने अपने किसी मामू का हाल पूछा, कभी फ़ोन किया? मैं ये सब भूल जाता। मगर जब मैं पिछले साल इस्तांबुल गया तो क्या आप यकीन करेंगे भाई कि मैं 18 रोज़ वहाँ रहा। मैं रोज़ सबीन के घर जाता था। सिकंदर तो मिला ही नहीं और जहान
जहान आखिरी रोज मुझसे मिला और वो भी 15 मिनट के लिए बस। वो भी जब उसकी माँ ने मेरा नाम बताया तो काफ़ी देर बाद उसे याद आया कि मैं उसका कोई दूर पार का मामू होता हूँ। फिर जानते हैं वो मुझसे क्या पूछने लगा? क्या पाकिस्तान में रोज़ बम धमाके होते हैं और क्या वहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद है? फिर उसका फ़ोन आया और वो उठकर चला गया। मैं कभी हया के लिए कोर्ट से खुला लेने के मुतालिक न सोचता अगर मैं उस रोज़ एक तुर्क लड़की को जहान को घर ड्रॉप करते ना देख लेता। जब मैं फ़्लाइट पकड़ने से कबल सबीन को खुदा हाफिज़ कहने गया था, उस लड़की के साथ उसकी बेतकल्लुफ़ी अल-अमान, वो सिकंदर शाह का बेटा है और वो अपने बाप का ही परतू है। मैं समझता था कि अगर अहमद शाह जैसे अजीम इंसान का बेटा होकर सिकंदर उसके बरक्स निकला तो वैसे ही जहान भी अपने बाप के बरक्स निकलेगा और एक अच्छा इंसान होगा, मगर नहीं, वो उसी मगरूर आदमी का मगरूर बेटा है। हया कौन है, उसका उनसे क्या ताल्लुक है? ये बात ना जहान को याद थी ना सबीन को। सबीन तो ये जिक्र ही नहीं करती। अब मैं अपनी बेटी को ज़बरदस्ती उनके घर भेज दूँ क्या? खैर, कल वलीद से मिलवाऊंगा आपको। अब जो रिश्ता भी अच्छा लगा, मैं हया की उधर शादी कर दूंगा। अब उसमें मज़ीद सुनने की ताब नहीं थी। वो सफ़ेद चेहरा लिए बोझल कदमों से चलती उनसे दूर हट गई। जहाँ सिकंदर को उसने कभी नहीं देखा था, बस बचपन से अपने और उसके रिश्ते के मुतालिक सुना था। वो साल भर की थी जब सबीन फुप्पो पाकिस्तान आई और फर्द जज्बात में अपने 8 साला बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग लिया। जज्बाती से कार्रवाई हुई और दोनों बहन भाइयों ने बच्चों का निकाह कर दिया। तब 8 साला जहान उनके साथ था। फिर वो तुर्की चला गया। 21 साल गुजर गए थे। वो तुर्की में ही रहा, कभी पाकिस्तान नहीं आया। और उस विजिट के बाद तो सबीन फुप्पो भी नहीं आई। ना कभी उन्होंने कोई तस्वीर भेजी, ना खत लिखा। अगर कभी कोई तुर्की चला जाता तो उनसे मिलाता, वरना उनसे राब्ता ना होने के बराबर रह गया था। इंटरनेट वो इस्तेमाल नहीं करती थी। अगर जहान करता था तो भी उसका कोई ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, किसी के पास कुछ भी न था। इरम वगैरह उसे फेसबुक पे सर्च कर करके थक गए थे, मगर तुर्की का कोई जहान सिकंदर उन्हें नहीं मिला था। शुरू के चंद बरस फूफो बहुत फ़ोन करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये राब्ते ज़िंदगी की मसरूफियात में खो गए। 3 माह में एक फ़ोन उनका आ जाता और 3 माह बाद एक फ़ोन इधर से चला जाता। यूँ 6 माह में 2 ही दफ़ा बात हो पाती। रस्मी अलेक सलेक, मौसम का हाल, सियासत पे तबादला ख्याल और फिर अल्लाह हाफिज़। उन तमाम बातों के बावजूद वो खुद को ज़हनी और जज्बाती तौर पर जहान से वाबस्ता कर चुकी थी। निकाह के वक्त की तस्वीर आज भी उसके पास महफूज थी। 8 साला भूरे बालों और सुनहरी रंगत वाला खूबसूरत सा लड़का जिसको उसने अपने रूबरू कभी नहीं देखा था, और शायद तुर्की जाने की सारी खुशी की वजह भी यही थी जिस पर अब्बा ने पानी फेर दिया था। उस रोज़ उसे रह रह कर फुप्पो और जहान पर गुस्सा आ रहा था, जिनकी बेरुखी के बाइस अब ये रिश्ता एक सवालिया निशान बन कर रह गया था। मगर खैर, दाबर भाई की शादी हो जाए और सेमेस्टर ख़त्म हो जाए, फिर वो तुर्की जाएगी और उन लोगों को ज़रूर ढूंढेगी। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।